Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. In relation to Article 16, we have to discuss the famous मंडल केस और इंदिरा सोहोनी केस. Okay. So क्या हुआ था? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट in late 1970s has constituted a commission to look into the provisions of backward classes other than SC and ST, जिसको हमने बाद में क्या बोला, other backward classes. Okay. But at that period of time, at the constitution of this commission, the term OBC is never coined. Understood? So Morarji Desai government has constituted this commission in the late 1970s, and in 1980s this commission gave the report. Head was BP Mandal. Okay, so we know this era was the era of collision. तो सरकारें बनती थी, गिरती थी, बनती थी, गिरती थी. The time arrives when the recommendation of this commission has been taken seriously. VP Singh government in 1990, following the recommendations of the BP Mandal Commission, gave 27% reservation in jobs. रिजर्वेशन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हमने पहले ही देख लिया था, है ना, 16 clause 5 आई थिंक. So VP Singh government in 1990 gave 27% reservation to OBCs. OBCs are the backward classes other than SC and ST, scheduled caste and scheduled tribes. So the term has been coined, other backward classes. इनको हमने जॉब्स में रिजर्वेशन दे दिया 27%. एंड वी नो these big decisions can't be implemented in the spirit unless and until a case will go to judiciary, and judiciary क्या करेगी, ठप्पा लगाएगी उस पर. उसी के बाद the actual implementation of the particular act will take place. आजकल तो सारे केसेस में हो गया ये सब. सो दिस वाज नन अदर देन मंडल केस और इंदिरा सोहोनी केस. ठीक है, ये याद रखना, आज के टाइम तक देयर वर पर्टिकुलर 2 कमीशंस constituted to look into the problems of other backward classes. The first was headed by Kelkar and the second one is we are studying, BP मंडल. ठीक है, आज तक 2 ही हुई हैं. ऐसे ही अभी यहीं बता रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लेना जाके, क्योंकि बाद में भी आने वाला है. सिमिलर कमीशंस हैज बीन कंस्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. आई थिंक द फर्स्ट वन वाज सम दीवार, UN दीवार, एंड सेकंड वन वाज समथिंग भूरिया. ठीक है, दीज वर द हेड्स. तो 2 ही SC के लिए बनी है और 2 ही OBC के लिए बनी है. ठीक है. So in the famous Mandal case or Indira Sohoni case, judiciary has upholded the constitutionality of this reservation, but quoted some general principles which are 5 in number. सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा भाई ठीक है, हमने मान लिया, ये जो 3750 कास्ट
which has been identified by BP Mandal's commission. हमने मान लिया कि these are backward classes and you have given 27% reservation in jobs. ठीक है, मान लिया. But we are laying down certain conditions ताकि इस 27% का मिसयूज ना हो, है ना. और ऊपर से जो जनरल पब्लिक है उनमें भी एजिटेशन था कि भाई वी आर नॉट गेटिंग जॉब्स इन दिस अनएम्प्लॉयमेंट इरा, सो व्हाई दिस इज काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. सो व्हाई दिस इनइक्वालिटी इज प्रिवेलिंग और enacted by the government so that these 27% will get job easily and we the general category are out from employment, है ना. So these 5 principles or guiding principles is given by Supreme Court to the government. First क्या बोला, the class in question, that is OBCs, these 3750 castes should be socially and educationally backward. पहली प्रिंसिपल. सेकेंड चीज क्या बोली, these quoted classes are not represented sufficiently in public employment. मतलब ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे, समझ रहे हो. और ये सारे ना और नहीं है, यहाँ एंड है. दिस ऑल 5 principles have to be taken into consideration parallelly. एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए क्लास का इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. थर्ड क्या बोलता है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ क्रीमी लेयर. आपने सुना होगा ये टर्म. These 3750 castes, भैया there are some people who with their meritorious ability had went abroad. कास्ट क्या इंडिया में, कास्ट तो पीछे पीछे आती है, बट दे आर वेल पेड ऑफ, है ना. दे आर लिविंग अ डिग्निफाइड लग्जूरियस लाइफ. सो इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर. इन दिस क्रीमी लेयर, हिंदी में समझाऊं तो मतलब मलाई, दूध की मलाई निकाल दो. दीज आर ऑल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. यहाँ ऊपर मलाई जम गई है. अगर ये मलाई ही हीट को बाहर ना जाने दे तो फ़ायदा क्या है. इस 27% रिजर्वेशन का यहाँ फ़ायदा क्या हुआ. सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड दैट प्लीज रिमूव दिस मलाई, दिस क्रीम विच इज़ सेट अबाउट द मिल्क. सो दिस वॉज नन अदर देन कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, कि वी विल नॉट गिव बेनिफिट्स टू दिस क्रीमी लेयर who actually belong to this 3750 class or OBC class, because they are well paid off, they are living a dignified and luxurious life. Criminal. Then the fourth provision is we have to maintain the efficiency of administration. What does this line mean? We have to maintain the efficiency. It means, अगर आपको जनरल एग्जांपल दूं, ओबीसी की कट ऑफ आती है, एससी की कट ऑफ आती है, एसटी की कट ऑफ होती है. इट मीन्स गिविंग 27% रिजर्वेशन टू द ओबीसी डजंट इम्प्लाई दैट दे डोंट हैव टू गिव द रेस्पेक्टेड एग्जामिनेशंस, है ना, रेस्पेक्टिवली एग्जामिनेशन. सो दीज 27% ओबीसी should also have to give that respective examinations to get a job. और इनकी हम कट ऑफ थोड़ी सी कम रख देंगे. That is called maintaining the efficiency of administration. So this was none other than fourth point. And the last point was this reservation that you are giving should not exceed 50% criteria of the whole administration in public employment.
मतलब इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इफ देर आर 100 पीपल, ओनली 50 जॉब्स कैन बी रिजर्व्ड फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। क्योंकि अगर इसके ऊपर भी आपने कर दी तो जनरल कैटेगरी कहाँ जाएगी, है ना। अभी से हम चिल्लाते हैं जनरल कैटेगरी जनरल कैटेगरी, तो अगर यही हमने बढ़ा दी तो क्या होगा, देयर विल बी एजिटेशन इन जनरल पब्लिक। और उसके बाद आपको पता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी, है ना, सबको पता है रिवॉल्यूशन आएगी एक बहुत तगड़ी वाली। सो दिस वाज द 5th पॉइंट। सो एससी reiterated these principles in 2006. So this was Indira Sawhney case. Absorb this. So coming to Article 19 which is right to speech and expression. सारे लिबरल्स ये चिल्लाते रहते हैं सारे डिबेट्स में, 19 और 21 ही ज़्यादातर बोला जाता है। तो इन 19(1)(a इट इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इट इज़ अ बंडल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, 19(1)(a स्पीच एंड एक्सप्रेशन की राइट देता है हमें, है ना। एंड दिस इंक्लूड्स राइट फॉर प्रेस और प्रेस फ्रीडम, है ना। देन सेकंड इज राइट टू असेंबली। Third one is association. Then next vocation last. सो हमको पहले क्या पता है आर्टिकल 19 के बारे में, डैट इट कैन बी ओनली सस्पेंडेड इन द केसेस ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। द emergencies declared on war and external aggression ground, it means external emergencies. अगर ये दोनों ग्राउंड्स हैं देन वी कैन सस्पेंड आर्टिकल 19, बट इफ द ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency is armed rebellion, the internal ground, then you can't suspend article 19. ये पहली बात है। अच्छा ये याद आ रहा है, देयर आर सम राइट्स विच आर गिवन टू एक्सक्लूसिवली गिवन टू सिटीजन्स, तो उनमें से कौन सी थी, ये इंक्लूड थी या नहीं उस लिस्ट में? यस, यही थी ना, 15, 16, 19, 29, 30 और एक छोटी सी और थी 18 क्लॉज 2। एक बार चेक कर लेना, रिवाइज करना। सो
19(1)(a) राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे राइट फॉर प्रेस आ गई। ये सबसे बड़ी बात तो यही है, यही यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि राइट टू प्रेस और फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज़ बीन गारंटीड अंडर विच आर्टिकल। सो अंडर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। नाउ दिस आर्टिकल 19 इज नॉट एन एब्सोल्यूट आर्टिकल. In each and every subpart of 19 there are some grounds on which this article 19 can't be exercised. एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, वो पढ़ लेना, मोरालिटी, डिसेंसी, डिफेमेशंस. सो ऑल दिस काइंड ग्राउंड्स आर इम्पॉर्टेंट, बट अभी तक तो इतना पूछा नहीं गया, पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा. देन 19B, राइट टू असेंबली. अच्छा, आगे जाने से पहले हाउ शुड वी रिमेंबर ऑल ऑफ दिस एट वंस. देखो, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा ही लॉजिक है, ज़्यादा नहीं है. वैसे तो वी हैव टू डू रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस. सो लॉजिक क्या है? ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो बोलना तो है ही. और आर्टिकल 19 इटसेल्फ इज द आर्टिकल ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो 19 क्लॉज ए गिव्स राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बातें किससे करेंगे? सो वी हैव टू फॉर्म असेंबलीज, है ना. असेंबलीज विदाउट आर्म्स. आर्म्स तो नहीं होनी चाहिए उसमें. पीसफुल प्रोसेशन होना चाहिए, है ना. जैसे हम वी कैरी आउट सच प्रोसेशन इन गणपति पूजा एंड ऑल. सो डेट इज कवर्ड अंडर राइट टू असेंबली. ठीक है, पीसफुल असेंबली. असेंबली हो गई तो चलो एसोसिएशन बना लेते हैं. थोड़े बोर हो गए तो एसोसिएशन बना लेते हैं. पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली, ट्रेड यूनियंस बना ली, क्लब्स बना लिए, ऐसा ऐसा कोई भी एसोसिएशन बना ली. स्कूल की एसोसिएशन बना ली, है ना. एसोसिएशन, बोर हो गए बातें करते करते, थोड़ा घूम के आएंगे, मूवमेंट करेंगे. अब बहुत ज़्यादा घूम लिए, अब यहाँ रहने का मन कर गया, है ना. केरला में कहीं चले गए, रहने का मन कर गया, तो वहाँ क्या करेंगे? रेजिडेंस खरीद लेंगे. इसके आगे आई हैव टू पुट 2 कट मार्क्स. वी विल डिस्कस इट लेटर. देन लास्ट वन इज वोकेशन. बैठे बैठे घर पे क्या करेंगे? करना है कुछ काम, राइट टू वोकेशन, नौकरी. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर वी कैन रिमेंबर ऑल द राइट्स इन आर्टिकल 19. ठीक है. वन बाय वन थोड़ा देख लेते हैं. राइट टू असेंबली में आई हैव टोल्ड यू पीसफुल प्रोसेशन, अनआर्म्ड होना चाहिए. सो इन दिस अवर गणपति विसर्जन इज कवर्ड. होली में अगर हम असेंबली कर रहे हैं तो डेट इज कवर्ड. ओके. शादियों में असेंबली कवर्ड. ठीक है. एंड आई हैव टोल्ड यू दीज आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. सो सेक्शन 144 144 ऑफ CRPC क्या करता है? गिव्स पावर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इम्पोज सम प्रोविजंस डेट 3 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, है ना. देन एसोसिएशन, आई हैव टोल्ड यू ट्रेड यूनियंस, देन पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. इसी से राइट टू मल्टी पार्टी भी आया, है ना. वी आर डिसेंटिंग सम आइडियाज ऑफ particular political party, so I can form my own political party also. So association. Then movement, intrastate and interstate, both the rights has been given by constitution, but इसमें भी कुछ है थोड़ा सा, है ना. एक्सेप्शंस के ग्राउंड है, आप देखना एक बार लक्ष्मीकांत में जाके. Schedule 6 एरियाज के अंडर नहीं जा सकते हम. ऐसे ही 1-2 और हैं. रेजिडेंस इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, एमरजेंसी के बाद. दिस पर्टिकुलर राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड 19E and 31, आर्टिकल 31. दिस बोथ आर डिलीटेड एंड राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट. रिमाइंड यू, द राइट्स विच आर नॉट गिवन इन पार्ट 3 of our constitution are called constitutional rights. Okay. And the rights which are given in article in part 3 of our constitution are fundamental rights, and which are not given in part 3 are called constitutional right. क्यों? क्योंकि वो और कहीं पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई हैं, और जो लिखी ही नहीं हुई वो क्या है?
एक्ट से जो हमको पावर मिल रही है, जो राइट्स मिल रही हैं, डेट इज़ स्टैट्यूटरी राइट्स, है ना। ये मैंने आपको शायद से डिफ्रेंसिएशन बताया हुआ है पहले। सो इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, आर्टिकल 19E and Article 31 has been repealed, and this particular right has been put in 300A article, ठीक है। Then last, right to vocation. Right to vocation मतलब आपको नौकरी कैसे करनी है, अभी आपकी मर्जी है, आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे आ रहे हैं। आजकल तो इतने सारे प्रकार की नौकरियां हैं, है ना, तो इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो फिर वो भी देख लेना एक बार। एक्सेप्शंस है कि आप ये सब नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट मोरालिटी, डिसेंसी एंड ऑल। सो दिस इज वाज नथिंग बट आर्टिकल 19. Absorb this. अच्छा, इन 19C राइट टू एसोसिएशन देयर वाज अ एक्सेप्शन। आपने देखा होगा आवर आर्मी, एयरफोर्स, नेवीज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड अदर आर्म्ड फोर्सेस, उनकी हमने कभी यूनियन नहीं देखी होगी, है ना। जैसे हमने PSUs में यूनियन देखी है, वी हैव सीन वेरियस ट्रेड यूनियंस, तो इनकी क्यों नहीं है? बिकॉज Article 33 we have covered till Article 32, okay, a brief notes on Article 32, but in Article 33 Parliament has Constitution has empowered Parliament that dear Parliament, I am giving you the power to impose some restrictions on the armed forces, but for what purpose? For the discipline in armed forces, for the security of India, है ना। अगर उन्हीं में ये सब हो जाएगा, दंगे वंगे आर्म्ड फोर्सेस में, तो आपने देखा था, है ना, आवर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 या 58, है ना। सो टू मेंटेन द डिसिप्लिन नेचर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द पावर टू पार्लियामेंट दैट यू कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द आर्म्ड फोर्सेस, जो भी राइट टू एसोसिएशन में कवर होती हैं। सो पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड रेस्पेक्टिव लॉज, इंडियन एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एंड स्नैच्ड अवे दिस पर्टिकुलर पावर फ्रॉम द एम्बिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। And in right to vocation, the process of nationalization has been instilled. मतलब in the future a day can or cannot be come when the state, the Union of India can nationalize your particular business in the interest of general public, ठीक है। वैसा तो नहीं करेगा, but in the interest of general public it can nationalize anything, ठीक है। और इसी को क्या बोला, मैंने आपको पढ़ाई है ये टर्म, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी इसी से बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, वी हैव स्किप्ड 18, सो लेट्स डू 18। So Article 18 prohibits the state from conferring titles to citizens। तो यही जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली यही है 18 क्लॉज 1। बट स्टेट कैन कन्फर academic और military distinctions, understood? जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, देन प्रोफेसर और कैप्टन,
wing commander, group captain, air commodore. These are all military distinctions and these are academic distinctions. So a person can prefix his name with these distinctions, but other than these, राजकुमार, ठीक है, छोटे नवाब, बड़े नवाब, राव साहब, these are all the distinctions which can't be prefixed because 18 clause 1 don't consider these particular prefixes which I have quoted, Rao Sahab and all, to any person residing in India. ठीक है. 18 clause 2, it prohibits a citizen of India from accepting any title from foreign state. मतलब आप फॉरेन स्टेट से भी नहीं ले सकते टाइटल और ना आपको इंडियन गवर्नमेंट दे सकती है. अंडरस्टूड. इन 18 clause 3 it is a provision for foreigners who are holding office of profits in India has to take prior permission of President of India before accepting the title from foreign state. ठीक है. So these are the three subparts of Article 18. 18 clause 1, the Constitution prohibits the state from conferring any title to its citizens. Exception is military and academic distinctions. ठीक है. 18 clause 2 prohibits citizen of India from accepting any title from foreign state, and 18 clause 3 is foreigner has to take prior permission of President of India before accepting any title from foreign state if he holds office of profit in India. Understood. So a particular case was taken to Supreme Court regarding Padma Awards. ये कोई शायद से साउथ के एक्टर थे, इन्होंने अपने नाम के सामने लगा दिया था पद्म भूषण XYZ. ठीक है. So actually these awards were constituted in 1956. क्यों? क्योंकि हमको इक्वालिटी तो रखनी है, ठीक है, सोसाइटी में, बट जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है हम उसको भी तो किल नहीं करना चाहते ना. हमने प्रीएम्बल में पढ़ी थी ये चीज़, है ना, लिबर्टी एंड इक्वालिटी का कंसेप्ट, ट्रिनिटी का कंसेप्ट हमने प्रीएम्बल में पढ़ा था, वो वाली क्लास देखना जाके. सो वी हैव टू एक्नॉलेज द इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स. ठीक है. तो फिर इसीलिए हमने पद्मा अवार्ड्स स्टार्ट किए थे. सो सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस हैज कोटेड दैट नो, पद्मा अवार्ड्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल. इक्वालिटी है तो ऐसा नहीं है वी विल नॉट एक्नॉलेज इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स. ठीक है. बट यू कांट प्रीफिक्स द टाइटल्स ऑफ पद्मा अवार्ड्स. जैसे हम नीचे लिख सकते हैं कि मिस्टर एक्स, अगर आपको एक्स से किसी की याद आ रही है तो जेड कर देता हूँ, मिस्टर जेड एन अवॉर्डी ऑफ पद्मा विभूषण. दिस इज गुड, आई थिंक ये लिख सकते हो आप. बट पद्मा विभूषण मिस्टर जेड, this will be wrong. You can't prefix it. So this was all about Padma Awards. Absorb this. What is the speciality of Article 20 plus in bundle with 21? स्पेशलिटी क्या थी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना. आर्टिकल 20, if a accused person is there which have violated any provision of constitution, then we have to punish him, but this punishment should be in accordance to the crime committed by him or her. ठीक है. We can't punish in excess to the act which has been done by the criminal. ठीक है. मतलब प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होनी चाहिए.
तो फॉर द स्टेट के ऊपर प्रोहिबिशन है कि आप एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दे सकते. So 20 clause 1 states that state can't legislate ex post facto criminal law. It means the legislature of India can't enact a criminal law from a past date in a retrospective manner. समझ रहे हो? जैसे अगर आज मैंने एक पर्टिकुलर पौधे पे पैर रख दिया, ठीक है, कांग्रेस ग्रास पे रख दिया मान लो, ठीक है, तो फिर कल को क्या हुआ, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया डेट एनीवन हु किल अ कांग्रेस ग्रास बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, है ना. So anyone who destroys or kills a Congress grass should be liable a fine of 1 crore and imprisonment of not more than 3 years. तो इसको लेके I can go to Supreme Court and I will quote Article 20 Clause 1 that a criminal law can't be implemented or legislated from a previous date, है ना, ठीक है. But I have underlined criminal. It means civil law can be implemented retrospectively. और हमने अभी इसका recent example भी देख लिया, शायद से वोडाफोन का केस था. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उस डेट से जब आपकी डील हुई थी तब से you have to give the total amount of fine to us, है ना. So this was 20 clause 1. 20 clause 2 is about double jeopardy, ठीक है. Now what is it? It means a person can't be punished twice for a single offense. अंडरस्टूड. इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इन कोर्ट ऑफ लॉ. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. इन फ्यूचर यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड यू हैव डन सर्टेन फॉर्म ऑफ करप्शन. करना मत, पर हो गई गलती से, ठीक है. तो यू हैव डन सर्टेन फॉर्म ऑफ करप्शन एंड यू आर कॉट बाय द ईडी, है ना. तो आपके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगे. प्रोसीडिंग्स में यू हैव बीन फाउंड गिल्टी. नाउ यूपीए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूपीएससी प्रेसिडेंट विल किक यू आउट फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, है ना. फिर उसके बाद आप घर गए, घर में आपकी सोसाइटी में बहुत बेइज्जती हुई, है ना. ऑल द पीपल आर लुकिंग डाउन अपॉन यू एंड बीइंग हैविंग फ्रस्ट्रेटेड with you and your nuisance for past 20 years, your wife filed for a divorce. क्यों? क्योंकि आपने करप्शन किया था और करप्शन से बेइज्जती आई है, ठीक है. सो दिस वाज अ इंसिडेंट ऑफ डबल जेओपार्डी, है ना. जब मैंने एक ऑफेंस कर दिया, ओके, आई हैव बीन किक्ड आउट फ्रॉम द सिविल सर्विसेज. व्हाई माई वाइफ हैज राइट टू गिव मी डिवोर्स. तो ऑफेंस तो सिंगल ही था, पर दो दो चीज हो रही है पनिशमेंट में. सो आई हैव टोल्ड यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट मीन्स ऑन द कोर्ट्स यू कैन बी पनिश्ड वंस ओनली. ये तो आपका सोशल मैटर है, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. अंडरस्टूड. सो दिस वाज द प्रोविजन ऑफ डबल जेओपार्डी. डबल जेओपार्डी in 20 clause 2 says that for a single offense you can't be punished twice. 20 clause 3, no person can be forced to give self incriminating evidence against himself.
अगर आपको कुछ समझ में आया इससे, तो इट इज टॉकिंग अबाउट, मतलब आपको सहयोग तो करना पड़ेगा पुलिस के साथ, ठीक है, यू हैव टू हेल्प पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, बट आपको मार मार के, जैसे वो गुड़गांव वाले जो बच्चे का मर्डर हुआ था उसमें बोला था, क्या हुआ, टॉर्चर किया किसको, बस ड्राइवर या कंडक्टर था ना, उसको टॉर्चर किया, एंड पुलिस हैज़ टेकन अ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट द ड्राइवर इटसेल्फ। बाद में जाके वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चलेगा, कोर्ट और जजेस अच्छे से उसे जांच पड़ताल करेंगे, एंड इफ दे फाउंड दैट दिस has been taken place in the police custody, then they will struck it down. Understood? So self incriminating evidence, ठीक है। Article 21 says that no person should be deprived of his life and personal liberty in accordance to the procedure established by law, ठीक है। तो what is this procedure? Established by लॉ। सो मैंने ये बोला है कि कोई भी इंसान को स्टेट ये नहीं बोल सकता कि नहीं अब आपकी पर्सनल लिबर्टी छीनी जा रही है ऑन अ फ्रिवलस ग्राउंड, ठीक है। अगर एक ग्राउंड इज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, so in that particular case the executive can deprive you of your life and personal liberty, ठीक है। so what is this procedure established by law? ये हमने ब्रिटेन से कंसेप्ट लिया है, और ये ब्रिटेन से क्यों लिया है ये अभी आप खुद समझ जाओगे। इन प्रोसीजर established by law the judiciary can't act against legislature but can act against executive, है ना, ये हमने पढ़ लिया। अब आराम से आप निकाल सकते हो कि ये ब्रिटेन से ही लिया है। इन ब्रिटेन जुडिशरी कांट गो एंड टेस्ट द फेयरिटी ऑफ लॉ, that the law itself is fair or not. Understood? Legislative wisdom है ब्रिटेन में, I have told you. So this particular principle, procedure established by law, has been dependent on legislative wisdom and public opinion prevailing in a particular society. क्यों? क्योंकि judiciary can't go and check the fairity of law. It can go and check that yes, the law which has been enacted has been went through a constitutional provision or a particular provisions. अगर आपको ये लॉ बनाना है तो it should be passed by Lok Sabha by this majority, it should be passed by Rajya Sabha by this majority, then the bill has to be taken to president for his assent, then the president gave his assent, and then the bill has been enacted. So this particular provision, this particular way has been followed or not, judiciary will check this. Judiciary will also check the law made by a authority is in the purview or powers or jurisdiction of that particular authority. It means for forming a particular law, a particular institution is competent or not, ठीक है। So these two things judiciary will check. But the third things, to test the fairity of law, judiciary
कांट चेक अंडर द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21। नाउ देयर इज अनदर प्रिंसिपल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। So this particular provision has not been written in Indian Constitution, but Supreme Court in Menka Gandhi case 1978 has interpreted Article 21 in such a manner that it included due process of law। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? जो थर्ड थिंग यहाँ जुडिशरी नहीं कर सकता था, इट मीन्स इट कांट चेक फेयरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, इट कांट यूज हिज पावर्स अगेंस्ट लेजिस्लेचर, ओनली एग्जीक्यूटिव के खिलाफ यूज कर सकता था। यहां क्या हुआ? जुडिशरी कैन चेक फेयरिटी ऑफ लॉ इटसेल्फ, मतलब पावर्स और जुरिस्डिक्शन अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। यहां किसके था? ओनली एग्जीक्यूटिव। This procedure established by law is dependent upon legislative wisdom। कि लेजिस्लेचर तो हमारे भले के लिए ही काम करेगी। ठीक है, और तभी ये ब्रिटेन में प्रेवलेंट है, बिकॉज ब्रिटेन गवर्नमेंट डोंट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज सिटीजन्स। पूरे हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। दैट्स वाई दे आर यूजिंग this procedure established by law। In due process of law, fairity of law can be checked by the judiciary, और ये दो तो कर ही सकती है। ठीक है, मेनका गांधी केस 1978 में SC has incorporated in article 21। आर्टिकल 21 की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड of his life and personal liberty except in accordance to the provisions established by law। ठीक है, अब this article 21 is the most interpreted article by the hands of Supreme Court। और सेकेंड नंबर पे कौन आता है? who tops the list? article 21। who is second in list? article 19, है ना? so this is the most interpreted article। And judiciary in number of cases, Supreme Court in number of cases has given a whole list of other fundamental rights which are offshoots of Article 21। If I give you particular examples, right to information, in 2020 Kerala High Court, I think, right to internet also made fundamental right under Article 21। reputation, right to reputation, right to sleep, and all of this whole list you can read from Lakshmikant। ठीक है, रट्टाफिकेशन की चीज़ है ये, बट दीज आर सम important provisions in the Article 21। so Article 21 is not a single right but it is a composite right, क्योंकि SC ने इतने बार इंटरप्रेट ही कर दिया उसे। ठीक है, सो दिस इज द बैकबोन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि आर्टिकल 21 ही नहीं रहेगा तो और जो दूसरी फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूजफुल नहीं है इतनी। अंडरस्टूड? सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड बैकबोन। आर्टिकल 20 के साथ मैंने 21 भी बोला था, तो इसकी एक स्पेशलिटी और है, वो आप बताना। सो इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिस फेयरिटी ऑफ लॉ इज देयर। तो ये हुआ कैसे? एक चीज़ होती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच हैज़ 3 प्रिंसिपल्स।
फर्स्ट वन इज नो पर्सन शैल बी पनिश्ड अनहर्ड। आप बिना उसे सुने हुए आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, वो कोई पंजाबी है गाना है ना कि सुनता नहीं पहले चपेट धरता हूँ, तो वो काम नहीं कर सकते आप। एवरी कोर्ट हैज़ टू वंस लिसन टू द एक्यूज्ड बिफोर गिविंग हिम पनिशमेंट। यू कांट बी अ जज ऑफ योर ओन केस। आपके खिलाफ someone has booked an FIR of theft or robbery. You are a judge of any district court. तो ये जब स्टार्ट हुआ केस और जब जिसने आपके ऊपर नाम लगाया है वो कोर्ट पहुंचा और जाके रोने बैठ गया कि भैया श्योरली आई एम गोइंग टू लूज दिस केस बिकॉज यू आर योरसेल्फ द जज इन अ केस यू आर बीइंग एक्यूज्ड। तो इसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका इसमें। यू हैव बीन accused of theft or robbery and you are acquiring the kursi, the chair of a judge in your own case. So this was against the principle of natural justice जो कि इंडिया में prevalent है। It means you can't be a judge of your own case or which in the cases which you have conflict of interest। ठीक है। And the third is authority should act in a bona fide manner। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, यू कांट बी अ जज ऑफ योर ओन केस बट अ पर्टिकुलर मिस्टर वाई इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड है आपका और दोनों की किस्मत इतनी अच्छी है, द फॉर्चून फेवर्स यू इन दिस वे डैट you both friends have attained the kursi of judge simultaneously in a particular high court also। तो आप दोनों एक ही हाई कोर्ट में जज भी बने हुए हो, तो आप क्या करोगे, ओके भाई, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सब क्लॉज 2 आई कांट बी अ जज ऑफ माई ओन केस। ठीक है, सो आई एम ट्रांसफरिंग दिस पर्टिकुलर केस टू माई बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड का कोई नाम लिखा होता है, जैसे ही बोलते हैं कि ये आपके बीवी है, ये आपके बच्चे हैं, दिस इज़ योर फादर, तो ऐसा कोई ना कार्ड होता है कि उसमें बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ, तो उसके पास कर दिया। अब वो क्या करेगा, आपको नहीं बचाएगा क्योंकि डेट इज़ हिज ड्यूटी, उसके एथिक्स आ जाते हैं। ठीक है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है जजेस का, तो वो भी आपको नहीं बचाएगा इफ़ योर एक्यूजेशंस प्रूव टू बी करेक्ट। ठीक है, सो इसका मतलब होता है कि अथॉरिटी शुड एक्ट बोनाफाइड, अथॉरिटी शैल एक्ट इन अ गुड फेथ। ठीक है, कोई भी बायसेस नहीं रखेगी। तो दीज आर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन दिस होल वाज आर्टिकल 20 के साथ हमको एक और आर्टिकल याद रख लेना है, आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन। एक्ट कब आया, 2009। राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया, 2005। Via 86 Constitutional Amendment Act of 2002, it has been made compulsory for the state to provide elementary or primary education to the children of age between 6 to 14 years. ठीक है, and following this particular enactment, one fundamental duty has been inserted in Part 4A, which is non-justiciable in nature, फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये किसकी ड्यूटी बनाई, चिल्ड्रन की, स्टेट की नहीं, दिस इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू गिव कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। ठीक है, 6 to 14 years। सो दिस वाज नथिंग बट राइट टू एजुकेशन, एंड फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, राइट टू एजुकेशन
एक्ट ऑफ 2009 हैज़ बीन पास्ड। ये 2002 में हुआ, 2009 में हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया। दिस वॉज आर्टिकल 21A। Arrest and detentions. So Article 22 deals with particular rights which have been conferred to persons in case of arrest and detention. If you have been arrested or detained by police custody in violation of an ordinary law, so you have the rights to be informed your grounds of arrest. ठीक है, you have the right to consult your lawyer. And within 24 hours you have to be produced in front of a judicial magistrate. ठीक है, एक स्टोरी सुन लीजिए, मज़ा आएगा। सो क्या हुआ, देयर वाज अ थीफ विच हैज़ कमिटेड अ क्राइम इन मध्य प्रदेश बट फ्लैड टू छत्तीसगढ़। ठीक है, सो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ पुलिस डिटेन्ड हिम एंड गिव इट बैक टू द मध्य प्रदेश पुलिस। ठीक है, पर अब ये 24 घंटे से ऊपर हो गए, तो अब क्या करे पुलिस, छोड़ना पड़ेगा अब तो, है ना। लॉज तो इतने स्ट्रिक्ट हैं ही अपने देश में। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्या किया कि बॉर्डर तक लाए उसे, और 4-5 स्टेप 10 मीटर की दूरी थी, बट 24 आवर्स हैज़ बिन कम्प्लीटेड, सो पुलिस हैव टू लीव हिम। तो कितना लॉजिक है स्टोरी में, बताओ, कुछ बनता है कोई लॉजिक नहीं बनता। सो एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ठीक है, जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करके विद इन 24 आवर्स द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो वो उसके बाद बताएगा कि आपको बेल मिल रही है या आपको पनिशमेंट या आपकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ रही है। अभी कोई मध्य प्रदेश में शायद से पर्टिकुलर कॉमेडियन हैज़ बिन डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी, सो उसकी जो पुलिस कस्टडी बढ़ी, द एक्सटेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी हैज़ बिन ऑर्डर्ड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। पक्का कोई होगा, ठीक है। सो दीज आर द 3 राइट्स गिवन टू अ पर्सन in case he have been arrested or detained in a police custody under violation of an ordinary law. Understood? Now in case of preventive detention, see, India is the only country, democratic country, which have the provisions of preventive detention in the constitution itself. और कोई डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न नहीं है, पर हमारे में है। क्यों? बिकॉज इंडिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री। इंडिया जैसी कोई कंट्री है नहीं अभी वर्ल्ड में, ठीक है। सो आवर इनक्रेडिबल इंडिया। तो इसमें कुछ प्रोविजंस हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ का डिटेंशन हो सकता है, इससे भी ऊपर का हो सकता है। तो दिस वाज समथिंग अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो आर्टिकल 22 डील्स विद ऑर्डिनरी लॉ एंड प्रिवेंटिव डिटेंशंस लॉ। दिस 3 आर important for our exam point of view. Absorb this. So I think छोटी क्लास रखते हैं, हमने 4 या 5 राइट्स कवर कर लिए हैं। सो आर्टिकल 23-24 आर कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ राइट्स। सो हम इनको एक साथ ही करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। वी विल डिस्कस पर्टिकुलर 23 राइट इन दिस क्लास एंड 24 राइट इन अदर क्लास, क्योंकि दोनों
एक जैसी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, बंडल ऑफ राइट्स याद है ना। सो दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।